سوال یہ ہے جو ذات اپنی پوری زمینی خدمت میں آپ دوسروں کے گناہ معاف کرتا ہے، وہ آج اس باقیوں کے لیے شفاعت کیوں کر رہا ہے؟ وہ آج باقیوں کے گناہ خود معاف کیوں نہیں کر رہا؟ یاد رکھیے گا خداوند یسوع مسیح جسے ہم کہتے ہیں وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ زمینی خدمت میں جب وہ زمین پہ تھا، خدمت پہ تھا، اور جب وہ دوسروں کے گناہ معاف کرتا تھا، یہ اس کی الوہیت تھی۔ لیکن جب صلیب پر ہے تو صلیب پر الوہیت نہیں، صلیب پر اس کی بشریت ہے۔ اور جب صلیب پر اس کی بشریت ہے تو وہ انسان ہے جو آپ گناہ کے بوجھ کے نیچے ہے، اور ایسا انسان جو آپ گناہ کے بوجھ کے نیچے ہے وہ اختیار سے گناہ معاف نہیں کر سکتا، ہاں وہ دوسروں کے لیے شفاعت کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ پکار کے کہتا ہے اے باپ تو ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ اے دعا سنی گئی کہ نہیں سنی گئی؟ یہ سن کے شفاعت کر دی تھی کہ دعا کا جواب یا سن کر آیا، یہ گل پوری نہیں ہوئی کہ نہیں، معافی ملی کہ نہیں ملی ہے بڑا۔ اچھا تسی دیکھو یسوع نو کسی نے سوری نہیں کیا، جڑا یسوع معافی مانگ لیا تو وہ شفاعت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب خدا یسوع سے کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ کسی کو معاف کرنے کے لیے سوری کرائٹیریا نہیں ہے۔ کوئی سوری کرے نہ کرے، کسی کو گلٹ فیل ہو نہ ہوئے، تو شفاعت کر دے، تو میرے مانگ دے، تو اپنے کو معاف کر دے، تو خدا کے حضور جھک جا، تو دوسرے کے لیے رحم کی فریاد کر، رحم کی اپیل کر۔ اللہ سوری کرے یا نہ کرے، اللہ سوری کا بہ کے انتظار نہ کرو۔ یہ سن کے سوری نہیں کی تاثیر کے سامنے، لیکن وہ پھر بھی پکار کے کہہ رہا ہے اے باپ تو ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے سر بھائی، یہ دعا سنی بھی گئی کہ نہیں سنی گئی؟ یہ دعا سنی گئی، اور یہ دعا یاسین کب سنی گئی؟ کھولا اعمال کی کتاب میں 30واں باب، پطرس نے واز کی دعوت، پطرس نے واز کیا، اور جب واز کیا تو 3000 لوگ، یہ وہی لوگ تھے جو پکار کے کہہ رہے تھے اسے صلیب پہ، اسے صلیب پہ۔ پطرس کے واز نے دلوں پر ایسی چوٹ کی، وہ کہتے ہیں صاحب ہم کیا کریں کہ نجات پائے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں، مطلب یہ ایسی خطا ہے، یہ ایسی غلطی ہے، یہ جس سے انجام ہے کہ پطرس تو آواز سنو، پطرس کی کہہ رہے ہیں۔ پطرس کہتا ہے صاحبو جسے تم نے صلیب کی نادانی کی حالت میں تم جانتے نہیں تھے مگر اس کو مسلوب کر دیا۔ ارے خدا نے مناسب جانا کہ اسی پتھر کو کونے کے سرے کا پتھر کر دے۔ ہاللیلویہ۔ اس کا مطلب کہ 3000 کی جماعت نے جو نجات پائی اس میں نہ پطرس کا کمال تھا، نہ واز کے خوبصورت جملے تھے، بلکہ ایک ذات تھی جس نے صلیب پر ان لوگوں کے لیے شفاعت کی تھی۔ اے باپ تو ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور باپ نے بیٹے کی فریاد سنی، دعا قبول ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا پہلے واز میں 3000 لوگ مسیح کے خاندان میں شامل ہو گئے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ آج اگر آپ اور میں یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ کسی پاسپورٹ کی کوالٹی نہیں، یا یہ اس لیے بھی نہیں کہ تو سہارے سے دل سے چلا گیا، کہیں ایک ذات نے آپ کے لیے میرے لیے شفاعت کی ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا یوحنا کی انجیل اور 17واں باب خداوند یسوع مسیح کی آخری دعا کی ہے، اور میں ان سب کے لیے باپ سے درخواست کرتا ہوں، صرف ان کے لیے نہیں جو ان کے کلام سے نجات پائیں گے، میں تو ان کے لیے بھی باپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ باپ میں اور ہمارے ساتھ ایک ہو جائیں۔ کہ آج میں نے تسی اتنے بیٹھے ایک ذات نے ہمارے لیے شفاعت کی تھی آج سے 2000 سال پہلے، اور صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کی گواہی سے، آپ کے کلام سے ہر وہ جان جو آنے والے دنوں میں بچے گی، جو نسلیں بچے گی، اس کے لیے بھی اس نے کہیں شفاعت کر رکھی تھی۔ اور آواز کے بھی کلوری کے پہاڑ سے اے باپ تو ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔
हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम अपने कदमों में खड़े हों और क्वाइट के साथ मिलकर हम ये गीत गाएंगे, कलवरी के सहारे पापी बात के साथ। कलवरी दे सहारे पापी बात के सहारे, कलवरी दे सहारे पापी बात के दूसरा कलमा नजात का कलमा, मुकद्दस लूका की मार्फत पर लिखी गई अंजील उसका 23वां बाब और 43वीं आयत खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और इस दूसरे कलमे को बयान करने के लिए मैं दावत दूंगा कि वो भैया सामने आए और इस दूसरे कलमे में रोशनी डाले। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र है कि आज आपके सामने खुदावंद के लबों में से दूसरे कलमे को मैं पेश करने को आया। दूसरा कलमा लूका की अंजील उसका 23 बाब उसकी 43 आयत, उसमें यूं मज़मून है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ताकि हमका पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए भाई से बरकत हो। मेरे अजीजों, दूसरा कलमा निजात का कलमा भी कहलाता है। इसमें हम देखते हैं 700 साल पहले इशाया नबी में ये फरमाया गया कि वो गुनाहगारों के साथ होगा, उनके बीच में होगा। तो ऐसा ही हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह को सलीब दी जाती है तो उसके लेफ्ट और राइट में गुनाहगार मुजरिम होते हैं तो, और वो उनमें से जो एक है वो खुदावंद को लाल तहल करता हुआ हमें नजर आता है। वो खुदावंद को उस वक्त भी जबकि सलीब पे लटका हुआ है और वो गुनाहगार है, उसके बावजूद खुदावंद को कहता है कि अगर तू खुदावंद यीशु मसीह है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। इसी तरह दूसरे हाथ पे जो डाकू है उसके दिल में रहम आया, उसके दिल में अपनी गुनाहों का एक इकरार आया जिससे उसने खुदा यीशु मसीह के लिए कहा गया। पहले उसने डाकू को डांटा कि हम तो गुनाहगार हैं, हम मुजरिम हैं, हमने गुनाह किया जिसकी हम सजा पाते हैं, लेकिन ये तो बेगुनाह है। तो उसने कुछ ही लम्हों में निजात पा ली। वो कैसे? जैसे कि पाकलाम में लिखा कि डाकू दूसरे डाकू से कहता है कि हम तो गुनाहगार हैं, हमारी सजा तो वाजिब है, और वो खताकारों में शुमार होता है। लेकिन वो खुदा यीशु मसीह को कहता है कि ऐ खुदा, अगर हो सके तो मेरे गुनाह माफ किए जाएं और आपके साथ मुझे अपनी बादशाही में मुझे याद रखना। तो खुदा यीशु मसीह उसी वक्त उसी लम्हे निजात देता है और कहता है कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसके साथ साथ एक और मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम लोगों ने बहुत बहुत दफा ये सुनी होगी स्टोरी नाफरमान बेटे की। तो कहने का मकसद ये है कि निजात, हमारा ईमान, जब हम कभी भी आखिरी एंड तक भी अगर अपने पूरे ईमान के साथ एडमिट करें कि हम गुनाहगार हैं तो खुदा हमें माफ कर सकता है। तो मैं बात कर रहा था नाफरमान बेटे की। हम सब जानते हैं कि नाफरमान बेटे ने किस तरह अपने बाप से, अपने घराने से लाताल्लुकी कर ली थी, पूरा अपना हिस्सा लेके वो चला गया, लेकिन जाके गुनाह में
اور طرح کے مطلب نجائز جو بھی ہے اس نے اپنا سارا کچھ لٹا دیا. جب وہ اتنا خراب حالت میں آ گیا کہ جانور جیسے سور کہتے ہیں، جو سب سے گھٹیا ایک دنیا میں ہم لوگ اس کو جانتے ہیں کہ سور ایک گندا جانور ہے، ان کے ساتھ بیج کھائے. لیکن کچھ ہی لمحے بعد اس کو خیال آیا کہ میرا باپ جو کہ بہت مالدار ہے اور اس کے نوکر بھی اچھے سے اچھے کپڑے، اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، تو میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اس سے معافی مانگوں گا. تو وہ جاتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے تو باپ دور سے ہی اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ آ بیٹا، اور وہ اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے میں گناہ گار تھا، میں نے تیرا گناہ کیا، میں اب تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہوں، لیکن تو مجھے میرے گناہ معاف کر اور اپنے نوکروں کے ساتھ ہی مجھے جگہ دے دے. لیکن اس کا باپ جو دنیاوی تھا، اس نے اس کے لیے اچھے کپڑے، انگوٹھی اور جوتا سب اس کے لیے منگوایا اور اسے اچھی طرح تیار کیا، اس کے گناہ اس کو معاف کر دیے. تو ہمیں بھی چاہیے اس طرح کہ ہم سب اپنے گناہوں کا اقرار کریں، کیونکہ خدا آج بھی ہمارے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے. ہم جو بھی اس سے معافی مانگیں گے وہ ہمیں ضرور معاف کرے گا. لیکن وہ جو ہم کیسے کرنا ہے وہ ہمیں توبہ کے ساتھ، جب ہم توبہ کریں گے اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو وہ ہمیں ضرور قبول کرے گا، کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ میں خدا کے پاس جاتا ہوں تاکہ تم لوگوں کے لیے مکان تیار کروں. تو آئے عزیزوں، ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی توبہ کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو کا اقرار کریں اور خداوند کے حضور جھک جائیں، تاکہ وہ ہمیں اپنے مکان جو اسے ہمارے لیے تیار کریں، ہم اس میں جا کے اس کے ساتھ شامل ہوں. اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت ملے. باقی ساتھ میں لگائیے. آئی ہم سب تشریف رکھیے گا. عزیزو، تیسرا کلمہ جو کہ محبت کا کلمہ ہے، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھ جانے کو اس کی خاص برکت ہو. آمین. اس تیسرے کلمے کو بیان کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ستارہ کو کہ وہ سامنے آئے اور اس کلمے پر روشنی ڈالیں. ہاللویا. مسیح کے زندہ اور بابرکت اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام. جیسے کہ آج ہم سیکھ رہے ہیں ان 7 صلیبی کلمات کے بارے میں جو دکھ کی حالت میں خداوند نے صلیب پر اپنے مبارک لبوں سے بیان کیے، اور جس طرح آپ 2 صلیبی کلمات پر سن چکے ہیں، جو پہلے تھا معافی اور دوسرا تھا نجات. اب ہم سیکھیں گے محبت کے بارے میں جو خداوند کے لبوں سے نکلا. آئیے میرے ساتھ نکالیے مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب 26 سے 27 آیت، جس میں مرسوم ہے، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے. خداوند کے پاک کلام پہ پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. عزیزوں،
जैसे आप जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए ही आए। ये एक मोहब्बत का ही हमारे लिए कलमा है कि यीशु मसीह ने अपने बाप के हुक्म को माना। और क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि बागे अदन में इंसान ने गुनाह किया और जुदाई हो गई इंसान और खुदा में, और खुदा ने फिर ऐसा काम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और यीशु मसीह हमारे लिए एक जलाली तौर पर इस दुनिया में आए और उन्होंने इंसानी सूरत ली, और जब तक वो इस इंसानी जिंदगी में थे उन्होंने हमसे मोहब्बत की और अपने शागिर्दों को, तमाम लोगों को यही पैगाम दिया कि आप एक दूसरे से मोहब्बत करें। और बतौर खादम भी यीशु मसीह ने इस खिदमत को अपनी जिंदगी में पूरा किया। और बतौर खादम, ये खादम की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर का बंदोबस्त करे। और हम देखते हैं कि जिस तरह काना दलील में मुकद्दसा मरियम का तारुफ हुआ है या बताया गया है, उसमें यूसुफ का कहीं जिक्र नहीं है। कह सकते हैं कि यूसुफ इंतकाल कर चुके थे और यीशु मसीह अपने घर के बड़े बेटे थे, और बड़े बेटे जो होते हैं बाप के बाद अपने घर के पासबान होते हैं। और वो जब वो सलीब पर थे और बहुत दुख में थे, तकलीफ में थे, वो तब भी अपने माँ के लिए फिक्रमंद थे और वो चाहते थे कि वो अपनी जिंदगी में ही वो अपनी माँ को अपने शागिर्द के सुपुर्द करें। और जैसे कलाम में लिखा है, खरूज 20:12 में, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र दराज हो। और ये हुक्म के साथ खुदा का वादा भी है, अगर हम अपने माँ और बाप की इज्जत करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं, तो खुदावंद हमारी उम्र की दराजी भी करेगा। और हम कलाम में देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 7 बाब की 5 आयत में, क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे। इससे हमें ये पता चलता है कि मसीह के जो दूसरे यीशु मसीह के जो दूसरे बहन भाई थे वो भी यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने उन्हें कबूल नहीं किया था। और यीशु मसीह किसी गैर ईमानदार के हवाले अपनी माँ को नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुकद्दस यूहन्ना रसूल के सुपुर्द किया, जो कि यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और वो ईमानदार थे। और वो दुख की घड़ी में सिर्फ सब शागिर्दों में से वाहिद शागिर्द वही थे जो यीशु मसीह के साथ थे। अभी के पतरस का हम देखते हैं, उसने बहुत दफा इकरार किया कि मैं खुदावंद यीशु मसीह से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत बार कहा, दावा किया कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आखिरी बार 3 बार इनकार भी पतरस ने ही किया। और सब दूसरे शागिर्द भी सब इधर उधर भाग गए, क्योंकि उन्हें अपनी जान की भी फिक्र हो गई कि अगर इसके साथ रहेंगे तो कहीं हमें भी ना पकड़ा जाए, हमें भी ना मारा जाए। तो अजीजों, हम ये सीखते हैं खुदावंद यीशु मसीह जब तक इस जिंदगी में रहे हैं उन्होंने हमें यही सिखाया कि एक दूसरे से मोहब्बत करिए, एक दूसरे की फिक्र करें, अपनी कलीसिया की फिक्र करें, अपने बहन भाइयों, अपने माँ बाप के लिए फिक्रमंद रहें। जब तक आपके माँ बाप इस दुनिया हयात में है, आप पर फर्ज है कि आप अपने माँ बाप की बंदोबस्त करें, उनके निगहबानी करें और उनसे मोहब्बत करें। मसीह का जिंदा आपको इस कलाम से और मुझे खूब बरकत मिले। आमीन। आइए जिसको अपने कदमों पे खड़े हैं। और इससे पहले कि हम क्वायर के साथ मिलकर हम 27 पे आगे बढ़े, एक बार अपने सरों को झुकाएंगे, तो आंखों को बंद करेंगे। हमें दरख्वास्त है जमात में से जिस किसी को खुदा कर उभारे तो शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदावंद, दिल क्या था घराइयों से खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी और आपके जिंदा नाम की तमजीद करती हूँ खुदावंद। और आज के ए खुदा मुबारक दिन के लिए भी शुक्रगुजारी करती हूँ जो आपने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम नजात पाएं खुदावंद, ताकि हमारा कफारा हो खुदावंद,
اے خداوند جب آپ بےگناہ تھے اے خداوند، لیکن آپ نے ہمارے لیے اے خداوند اپنے اے خداوند ہمارے گناہوں کو لیے ہوئے اے خداوند صلیب پر جان دی اور ہمیں مخلصی دی، ہمیں اپنے خون سے خریدا خداوند، آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اے خداوند۔ جب آپ کے پاک کلام میں سے اے خداوند سیکھتے ہیں تو ہمیں اے خداوند اپنے کلام پر دھیان اور اس پر عمل کرنے کا فضل دے۔ یسوع کے نام سے سب کچھ مانگتی اور پا لیتی ہوں، آمین۔ کلوری دے سارے ساتھی ساتھی میرے سارے کلوری دے سارے ساتھی ساتھی میرے سارے کیوں نہ مجھے تشریف رکھیے گا عزیزو۔ چوتھا کلمہ کفارے کا کلمہ، مقدس بطنی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 27واں باب اور اس کی 46ویں آیت، خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور اس چوتھے کلمے کو بیان کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا برادر شمعون کو کہ وہ سامنے آئے اور اس خوبصورت کلمے پر روشنی ڈالیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ کچھ سال پہلے جب میں اس چرچ کا ممبر تھا تب بھی میں نے یہاں پر ایک کلمہ پیش کیا اور یقیناً وہ ریگولر ممبر تھا۔ ابھی بھی ممبر ہوں لیکن کبھی کبھی آتا ہوں۔ تو اس بات کے لیے میں پال صاحب کا، یاسر بھائی کا، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس قابل سمجھا کہ ایک بار پھر آپ کے سامنے یہاں پر میں خدا کے کلام کو پیش کر سکوں۔ اور جس کلمہ کو آج بولنے کا مجھے موقع ملا ہے وہ چوتھا کلمہ ہے جس کو کفارے کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 27 باب اس کی 46ویں آیت میں لکھا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ایک اور جگہ پہ سیم ریفرنس ہمیں ملے گا، مرکز اس کا 15 باب اس کی 34 آیت میں، جہاں پر لکھا ہے الوہی الوہی لما شبقتنی۔ یہاں پر اکثر اس کے پہلے ریفرنس پر جو ہم نے پڑھا ہے، دوسری کمیونٹی کے لوگ یا آپ کہہ سکتے ہیں اہل تشیع جو لوگ ہیں وہ اس بات پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ صلیب پر یہ لفظ جو آپ کے خدا نے پکارے وہ ہمارے ان کے ایک علی ہیں، ان کے لیے یہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن خداوند کی شکر گزاری ہے، خدا نے پاکستان میں ملک کے دوسرے حصوں میں ایسے اسکالر رکھے ہیں جو اس پر انہیں بڑی اچھی تفسیر بیان کر کر جواب دیتے ہیں۔ آج اسی بات پہ ہم غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے اگر یہ کہا ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو اس بات ایسی کیا وہاں پر بات ہو پڑی کہ خدا کو یہ کہنا پڑا، یسوع مسیح کو خدا کے لیے یہ کہنا پڑا۔ یہاں پر لکھا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو زبور 22 کی پہلی آیت وہاں پہ لکھا ہے، پھر بھی یہ سیم ملتا ہے، داؤد کہتا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ یہودی جو تھے وہ جب کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں یا کسی ایسی جنگی حالت میں ہوتے تھے یا دشمن ان پر حاوی ہو جاتا تھا تو تب یہ زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ لیکن اب ایسا کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو یہ کہنا پڑا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔
اکثر وہ لوگ جب بڑی اذیت میں مصیبت میں پڑ جاتے تھے یا کہہ لیں ان کے سر سے پانی گزر جاتا تھا تو پھر وہ اس زبور کو سامنے لے کر آتے تھے، اور جب کچھ نظر نہیں آتا تھا ان کو تو وہ یہ زبور کی آیت پڑھتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ بطور یہودی ایک سوال کھڑا کرتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی۔ جب ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو خود کئی جگہ پہ ہمیں ملتا ہے کہ جس نے خدا کو دیکھا اس نے مجھ کو دیکھا، اور یوحنا پہلے باب کی پہلی آیت بھی ہمیں واضح طور پہ بتاتی ہے کہ وہ بطور جب سے ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں وہ یسوع مسیح خدا کے ساتھ تھا۔ اسی طرح اس نظریے میں سے ہم تین باتوں کو دیکھیں گے۔ جو پہلا ہے وہ ہے کہ جسمانی طور پر بھی اور ایک ذہنی طور پر بھی وہاں پر جب یسوع مسیح پر بہت زیادہ تشدد ہوا، ایک نظریہ یہ ہے تو یہ پکارنا پڑا، کیونکہ یہودی جب کسی مصیبت میں ہوتے تھے تو تب یہ پکارتے، تو ایک نظریہ یہ بھی ہمیں کہتا ہے۔ لیکن جو دوسرا نظریہ ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ خدا باپ نے یسوع مسیح کو چھوڑ دیا۔ یہ نظریہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا باپ نے یسوع مسیح کو چھوڑ دیا۔ اور تیسرا ہے کہ عارضی طور پر خدا نے یسوع مسیح سے علیحدگی اختیار کی۔ تیسرا نظریہ جو ہے یہ ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ ہاں عارضی طور پر خدا نے یسوع مسیح سے علیحدگی اختیار کی، کیونکہ میرے اور آپ کے گناہوں کا بوجھ وہ کس پر تھا؟ یسوع مسیح پر تھا، اور خدا کی آنکھ اتنی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ اسی طرح میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا، مووی دیکھ رہا تھا ایک، تو اس مووی کے اندر دکھایا گیا کہ ایک ملک ہے، وہاں پر ایک ایسا برج ہے جہاں پر ایک ٹرین ہے، اور وہ ٹرین جب وہاں سے گزرتی ہے تو وہ برج بند ہوتا ہے۔ اس برج کو بند کرنے والا ایک ایماندار ہے وہاں پر، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ٹرین کا ٹائم ہوتا ہے آنے کا، اور اس کا اپنا بیٹا اس کو دیکھنے کے لیے اپنے باپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں آج اس ٹرین کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ اس سے ریکویسٹ کرتا ہے، اس کا باپ اس کو کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے تو وہاں پر یہاں سے جا اور جا کر وہاں پر کھڑا ہو جا۔ لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ ٹرین کا ٹائم ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کا پاؤں ایک پٹری کے اندر پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ایک سائڈ سے ٹرین آ رہی ہے، ایک سائڈ پہ اس کا بیٹا پھنسا ہوا ہے، لیکن اب اگر وہ اپنے بیٹے کو بچانے جائے گا تو جو ٹرین کے اندر لوگ ہیں، برج بند نہیں ہوگا تو ٹرین ظاہر ہے گر جائے گی۔ اب اس کا ایک دھیان اس مشین کی طرف ہے جہاں پر وہ بٹن ہے جو پریس کرنے سے وہ پل بند ہوگا، اور ایک دھیان اس کا اپنے بیٹے کی طرف ہے۔ اب وہ کرتا کیا ہے، اب وہ نگاہ صرف ٹرین پر کرتا ہے اور جا کر اپنا وہ جو بٹن ہے بند کرتا ہے، برج جو ہے بند ہو جاتا ہے۔ برج بند ہونے کے بعد ٹرین جب گزرتی ہے تو سارے لوگ تو بڑھ جاتے ہیں، لیکن آگے جو اس کا بیٹا ہوتا ہے وہ کچلا جاتا ہے۔ میں آپ کو کہنا کیا چاہتا ہوں، سے خدا نے میرے اور آپ کے گناہ یسوع مسیح پر لا دے تاکہ میں اور آپ بچ جائیں اور آج یہاں پر بیٹھ سکیں اور ہمارا چھٹکارا ہو سکے، تاکہ ہم اپنی زندگی گزار کر اس کی کنگڈم میں جا سکیں۔ ایک اور بات آپ کے سامنے کروں گا کہ یہ کلمہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تیسرا جو اس کا پوائنٹ ہے کہ عارضی طور پر خدا نے یسوع مسیح سے علیحدگی اختیار کی۔ دوسرا کرنتھیوں کا 5واں باب 21 آیت میں بھی لکھا ہے کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اور گنہگار ٹھہرا، کس کے لیے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے وہ گنہگار ٹھہرا۔ جو گناہ سے واقف ہی نہیں ہے، جس نے گناہ ہی نہیں کیا، تو میرے لیے اور آپ کے لیے وہ گنہگار ٹھہرا۔ آگے ملتا ہے جسمانی طور پر جو ہے نا، جسمانی طور پر یسوع اذیت میں تھا، جسمانی طور پر یسوع اذیت میں تھا، سر میں کانٹوں کا تاج ہو۔ اور میں یہ تاج کو دیکھ رہا تھا تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ پکچر میں صرف اتنا تاج دکھایا گیا ہے، لیکن جب میں نے اس کو دیکھا، جیسے ہم بائک پہ ایک ہیلمٹ نہیں پہنتے جو پورا ادھر سے کور ہوتا ہے، سیم ایسا تاج تھا یسوع مسیح پر۔ اور یسوع مسیح ہمارے لیے اور میرے لیے، آپ کے لیے صلیب پر پورا برہنگا تھا۔
جو ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ الگ ہے. اس قدر ہمارے گناہ تھے کہ اس قدر اذیت میرے اور آپ کے یسوع کو سہنی پڑی. وہ جسمانی طور پر تو خدا سے الگ ہو گیا، لیکن اس معاملے میں روحانی طور پر بھی وہ گناہ کی وجہ سے میرے لیے اور آپ کے لیے الگ ہوا. اور آگے جا کر ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ اگر یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی نہ اٹھتا تو یہ الفاظ کہے ہوئے یسوع کے بے فائدہ تھے. یعنی اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لیے اور یہ کر کے دکھایا کہ تیسرے دن مردوں میں سے وہ جی اٹھا تاکہ میں اور آپ اس کی بادشاہی کے وارث بن سکے. عارضی طور پر خدا ارد تو ہوا، لیکن وہ میرے لیے آپ کے لیے ہوا. اور کیا آج میری اور آپ کی پکار ایسی ہے؟ اگر یسوع نے میرے لیے آپ کے لیے صلیب پر پکارا، کیا آج اور میں سے آپ پکارتے ہیں؟ کیا ہم روز اس کو پکارتے ہیں؟ کیا ہم آج کے کلمے سن کر بھی اپنی زندگی کو پھر پچھلے دنوں کی طرح رکھیں گے؟ اگر آج آپ ان کلموں کو سن رہے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی ایک زندگی بھی بچتی ہے تو آج کی یہ دوپہر باعث برکت ہے سب کے لیے. خداوند آپ سب کو برکت دے اس کلمہ کے وسیلہ سے. گاڈ بلیس خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے 5واں کلمہ جسمانی دکھ کا کلمہ مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے میں پیاسا ہوں. اور اس 5ویں کلمے کو بیان کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا مگر جاکت کے لیے جاکت کو کہ وہ سامنے آئے اور اس کلمے کو روشنی ڈالیں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. تشریف رکھیے صاحب. خدا کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. آج ہم خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت کا ذکر کر رہے ہیں اور جیسا مسیحا مقدس نے صلیب کے اوپر 7 کلمات بولے، ہم ابھی تک 4 کلمات کو ڈسکس کر چکے ہیں. اور اب میرے عزیزوں ہم نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح جو تھے تقریباً کوئی 18 گھنٹے کا وقت ہو چکا ہے. میں 5واں کلمہ بیان کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا اس کا سیاق و سباق بتانا چاہ رہا ہوں. ابھی تک گتسمنی باغ سے لے کے آن ورڈ جب یسوع مسیح کو پکڑوایا گیا، جب رومی سپاہی آئے اور انہوں نے آ کے یسوع مسیح کو پکڑا، اس سے لے کے اب تک تقریباً 18 گھنٹے ہو چکے ہیں. اور یسوع مسیح کے اوپر بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اتیاچار ہوا ہے. بہت زیادہ ان کے اوپر مار پٹائی، ظلم، تشدد ان پہ ہو چکا ہے. لیکن جو خوشی کی بات ہے، ہمارا مسیح، ہمارا یسوع وہ بڑا ہے جو اپنی خوشی سے قربان ہونے کے لیے گیا. ہاللیلویا. اور تو ہم سمجھتے ہیں کہ یسوع اس ٹائم دکھ کی حالت میں ہے، باڈی میں ہے، کرب کی حالت میں ہے. ایسا یقیناً ہے یسوع جسمانی حالت میں ہے، کیونکہ وہ اگر انسان کی صورت میں اپنا فدیہ نہ دیتا تو آج ہم یہاں پر نہ بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مکمل خدا ہے، مکمل انسان ہے. لیکن
गुनाह की माफी के लिए खून की जरूरत थी और वो बेऐब बनना चाहिए था। वो यीशु मसीह नासरी थे। अभी तक 18 घंटे में बहुत सारी उनको अदालतों का सामना करना पड़ा। लिखा है कुछ 6 के करीब उनके खिलाफ अदालतों में सारी कार्रवाई की गई, जिसमें सरदार काहिनों की भी अदालत थी और पिलातुस की भी अदालत थी। और उसमें देखा जाए तो उसने कहा, पिलातुस का, अगर मैं उसको पढ़ते हैं हम लोग यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब, तो उसमें लिखा हुआ है कि 3 बार पिलातुस ने इनकार किया कि मैं इसमें कुछ भी जुर्म नहीं देखता। हत्ता के मत्ती और मरकस में कहा गया कि उसने अपने हाथ धो लिए और उसने कहा कि मैं इसमें कुछ भी ऐब नहीं देखता। अब देखा जाए तो यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाना, हाथों में कील ठोकना, उनकी जिंदगी का अपने आप को पेश करना, तो देखें तो इंतहाई मुश्किल में है। इंसानी जिस्म में है, लामराना है। इंसान जब उस पर दुख पड़ता है तो उसकी जिंदगी में एक दफा तो चीखो पुकार आता है। लेकिन अगर हम देखें तो इस असना में, इस पूरे टेन्योर में यीशु मसीह के बहुत कम अल्फाज हैं। सलीब पे तो 7 कलमे हैं, इसके अलावा भी उस पूरे जो उनके ऊपर मुकदमा चल रहे थे, यीशु मसीह ने कोई ज्यादा बातचीत नहीं की, गैर जरूरी चीजों का जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब है ये जो 7 कलमात हैं ये बहुत एक सिग्निफिकेंस रखते हैं, एक बहुत बड़ी अहमियत के हामिल है। और जिसमें 4 कलमात हो चुके, 5वां कलमा क्या है? मैं प्यासा हूं। अगर हम इस वर्ष को थोड़ा सा रीड करें तो मैं उसको रीड करना चाहता हूं। यूहन्ना 19वां बाब उसकी 28वीं आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया, ये अल्फाज पे गौर कीजिएगा, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। इस आयत को अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है वो उसका एसेंस है, वो उसकी जवाब पहले है कि यीशु ने इतनी बड़ी शख्सियत जो समुद्रों का मालिक है, जो कहता है तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, जो कहता है जो मुझसे मांगेगा तो मैं उसको उसके अंदर से पानी की नदियां बहा दूंगा, चश्मे बहा दूंगा, वो जात क्या पानी की मोहताज हो सकती है? लेकिन जब हम बॉडी में होते हैं, बीइंग इंसान होते हैं, तो ऐसा था। क्योंकि यीशु मसीह का एक कट चलती है, बिदत है, बहुत सारे लोग हैं वो मानते हैं कि यीशु मसीह खुदा था, उसको पानी की जरूरत नहीं थी। ऐसा हरगिज नहीं है। यीशु मसीह जब कफारे के लिए वहां पे खड़े थे, जब कुर्बानी देने के लिए वहां पे खड़े थे, तो उस टाइम वो पूरे इंसान थे। हालेलुया। अब इंसान होने के नाते बर्रा, जैसे हम देखते हैं पुरानी कुर्बानियां चली आती थी, बर्रा चीखो पुकार करता था, मैं करता था, उसको काटते थे, उसके खून से मिलता था, उसको हमें गुनाहों की माफी बताते हैं होती थी। लेकिन अब असली बर्रा आ गया जिसमें वो कुर्बानी देनी थी। लेकिन यीशु मसीह की शख्सियत देखें तो बीइंग इंसान भी वो ऐसे परफेक्ट है कि उनका एक लफ्ज भी, शायद मैं और आप हमें आज की जिंदगी में हमारे को थोड़ा सा भी मुश्किल आती है, हम जल्दी से खुदा के खिलाफ, हम दोस्तों के खिलाफ, हम अपने बहन भाइयों अजीजों कुर्बा के खिलाफ जल्दी बातें करना शुरू कर देंगे। यार तेरी वजह से यह मुश्किल आ गई, तो तू ही कितना सी, तो मैं कितना सी, ऐसा करके हम करते हैं। लेकिन यीशु को देखें तो उनका एक भी लफ्ज लोगों के खिलाफ नहीं निकला। अभी तक हमने जो 4 कलमे पढ़े उसमें ऐसा ही है, और ये 3 कलमे इसमें रोशनी में है, आगे जो 4 कलमे हैं वो अंधेरे में। मतलब क्या हुआ कि रोशनी और डीप किस्म के इसमें मीनिंग्स हैं। वैसे तो सब लोगों को खुदा का पता है कि खुदा ने सिंपली ऐसे ही हम बोलते हैं। मैं भी जब इस पे थोड़ा रिसर्च कर रहा था, मैं सोचता था यीशु मसीह प्यासे हो सकते हैं क्या? यीशु मसीह को भी प्यास लगती है जो कि खुद खालिक है, लेकिन लगी। अब वो क्यों लगी? इसलिए लगी कि वो बॉडी में थे और वो चाहते थे, अगर खुदा यीशु मसीह देखें तो 18 घंटों में उन्होंने पानी नहीं मांगा। उनका आखिरी खाना गत्समनी और जो आखिरी फसा था वो था, उसके बाद लगता नहीं है, दिखता नहीं है कि उनको कुछ खाने पीने को मिला होगा।
तो उससे पहले भी वो काबिला कर सकते थे, और पानी दे दो, कुछ कर दो, कुछ कर दो, कहीं उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं। मतलब क्या हुआ कि यीशु ने एक पूरे नविश्ता, अभी जिसमें मैं बताना चाह रहा हूं, वो नविश्ता यीशु को याद है। अगर देखें तो यीशु के मुताबिक सलीब के ऊपर 20 से ऊपर नविश्ते पूरे होते हैं, और यीशु मसीह के तो कलाम खुद थे, उनको पता था कि भाई ये नविश्ता पूरा होना जरूर है। तो यीशु ने ना चाहते हुए उनको पता था, उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं। और तो वो ना भी कहते तो कुछ नहीं था, लेकिन वो प्यास थी, वो जैनो प्यास थी। लेकिन उसको जब हम रूहानी तौर पे खोलेंगे तो बहुत बड़ा खुदावंद आज हमसे एक मैसेज रिलीज करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब उनकी बॉडी के ऊपर गर्भ गुजर रहा है, उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं। प्यास जो उनको सता रही थी, आप देखें तो जैसे ज़बूर 69 है, उसकी 21 आयत में खुदावंद यीशु मसीह वो नविश्ता पूरा करते हैं कि उन्होंने मेरे पीने के लिए, उसका दूसरा हिस्सा है, वर्ष का पढ़ सकते हैं घर पे जाके, उन्होंने मेरे पीने के लिए मुझे सिरका दिया। यीशु मसीह फुलफिलमेंट कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वो कलाम में लिखा हुआ है। अगर यीशु सारे नविश्ते पूरे नहीं करते तो यीशु नहीं होते। हालेलुया। इसलिए हमारे खुदावंद को कलाम याद है, वो खुद कलाम है, वो नविश्ता पूरा करने के लिए ये लफ्ज बोलते हैं। यहाँ पे हमारे यीशु मसीह कई जाती तौर पे वो खुद उन्होंने अपने आप को कुर्बानी देने के लिए पेश किया है। यहाँ पे कोई परेशानी की हालत में पानी नहीं मांग रहे, मुश्किल की हालत में नहीं मांग रहे तो यार मैं शायद पानी पीऊंगा तो जिंदा रहूंगा, ऐसा उनका कोई सीन नहीं है। वो उसको पूरा कर रहे हैं, वो लफ्ज को, वो नविश्ते को पूरा कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने वहां पर पानी मांग कर ये कहा कि उस नविश्ते को पूरा करना जरूर है। अब इसमें देखें तो आगे थोड़ा सा कि दो टाइप की यीशु मसीह प्यार से रिलेटेड बात है, तो यीशु मसीह को दो तरह की मैं पेश की गई। पहले मुड़ मिली, पत मिली हुई मैं पेश की गई, जो कि उस वक्त ऐसा होता था कि कुछ फीमेल्स थी, उन्होंने जैसे लोग जब सलीब दी जाती थी तो लोग, उनका दुख बहुत बड़ा होता था, तो वो सोचते थे इनको दे देंगे तो पीने से क्या हो जाता था, आदमी बेडाल हो जाता था, बिल्कुल उसको कुछ सुध बुध नहीं रहती थी। वो कहता था ठीक है मर गया, क्योंकि पेन बहुत ज्यादा होती थी, हाथों में कील लगना, कांटों का ताज, एवरीथिंग। बंदा सोचता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है। लोग कहते थे चलो इसको मेरी मैं पिला दो, ये खुद बहुत मर जाएगा, बावेला नहीं करेगा। लेकिन हमारा यीशु इंसान हो के भी उसको नजर आया है कि मुझे सलीब का दुख सहना है, फिर भी आपको पता है लिखा है कलाम मुकद्दस में, मत्ती में, मरकस में, कि उसने मना कर दिया। हालेलुया। उसने क्या किया, क्यों किया? क्योंकि वो अपनी बॉडी में मेरे दुख सहना चाहता था, आपके दुख सहना चाहता था। वो चाहता था कि मैं साबित करूं कि मैं मुकम्मल इंसान हूं, शख्सियत हूं। ठीक है मैं खुदा हूं, लेकिन मैं बिन बॉडी रखते हुए मुझे जरूर है कि मैंने सेम वो सारी तकालीफ बर्दाश्त करनी है। तो यीशु मसीह ने इनकार कर दिया। दूसरी दफा जब देखते हैं ये कलमा जो हमने पढ़ा, मैं प्यासा हूं, आपको पता है इस इस्लाम में तकरीबन यूहन्ना की इंजील के इस पैराग्राफ में यके बाद दीगरे यीशु मसीह के 3 कलमात हैं, यानी जल्दी हुए हैं। और मैं सोच सकता हूं कि सलीब के ऊपर है, आखिरी लम्हात चल रहे हैं, हम सब सोच सकते हैं मैं भी खुदावंद यीशु मसीह से इतना बोला भी ना जा रहा हूं, क्योंकि लिखा हुआ है कि उसकी जुबान तालू से चिपक गई, ये कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ। अब उससे बोला भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं है। लेकिन कैसी बात है कि जो सलीब के गिर्द उस टाइम रोमी सिपाही खड़े हैं। आज मैं आप लोगों की थोड़ी सी तवज्जो उस तरफ दिलवाना चाहता हूं कि रोमी सिपाही जो खड़े हैं, उन्होंने यीशु मसीह की आवाज बहुत धीमी बोली है, मेरे ख्याल में बहुत धीमी होगी, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि इस वजह से क्योंकि उनसे बोला नहीं जा रहा था। इंसान होने के नाते अगर आपकी जुबान तालू से चिपकी हो तो कैसे बोल सकते हैं। अब वहां पे जितने सिपाही बैठे हैं, 4 सिपाहियों का जिक्र है। वही सिपाही जो यीशु मसीह को तमाचे मारते हैं, वही सिपाही जो उनके मुंह पे थूकते हैं, वही सिपाही जो अर्गवानी पोशाक पहनाकर बाद में उस पर कूड़ा डालते हैं, वही सिपाही जो उसे लान तान करते हैं, वही सिपाही जो भी उनके मुंह में कुफर आता है वो बकते हैं। लेकिन आज देखें तो वो धीमी सी यीशु मसीह की आवाज, बहुत मैं प्यासा हूं,
उन्होंने सुनी। क्यों सुनी हमें कलाम बताता है। आगे 30वीं आयत में 29वीं आयत में देखें तो यीशु मसीह ने जब बोला तो जल्दी से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक विनेगर का टब पड़ा हुआ था, वो ऐसी शराब थी, ऐसा सिरका था, उसको कौसका बोलते हैं। वो क्या था, उसको घटिया किस्म का सिरका शराब कह सकते हैं, लेकिन वो फौजी अपनी थर्स्ट को, प्यास को बुझाने के लिए पीते थे। अब क्या हुआ, उन्होंने जल्दी से सुना, उनमें से एक बड़ा, उसने स्पॉन्ज क्या था, स्पॉन्ज एक्चुअली उस टाइम जितने भी वॉरियर्स थे वो उनके हेलमेट्स के अंदर उनकी वर्दी का हिस्सा था, वो साथ रखते थे पर्पसली। उन्होंने स्पॉन्ज पकड़ा, उसको विनेगर में डाला और डाल के जूफे की शाख पर चढ़ाकर यीशु मसीह को चखाया और यीशु मसीह ने वो चूसा और पिया। पहले जो उनको बेतमेली में दी गई वो चख के छोड़ दी, नहीं पी, ये वाला पी लिया। अब मैं सोचता हूं कि वो लोग जो यीशु से बहुत दूर थे, क्योंकि 18 घंटे पहले यीशु को मिले हैं, बस सिर्फ 18 घंटे पहले। अभी 18 घंटे में वो यीशु को पहले नहीं जानते थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि, लेकिन वो 18 घंटे वहां पे खड़े हैं, यीशु मसीह की जो मसरूफियत है उसको देख रहे हैं और गौर कर रहे हैं। वाह, अब उस असना में यीशु मसीह जो भी जेस्चर कर रहे हैं, जो भी हरकत कर रहे हैं, जो भी अल्फाज दे रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि वो गैर कौम वाले रोमी वो यीशु मसीह से इंस्पायर हो चुके थे। पहले वो जो लानतान कर रहे हैं, आज वो क्या कर रहे हैं, वो यीशु मसीह को फौरन से पहले वो सिक्का बनाना चाह रहे हैं। क्यों बनाना चाह रहे हैं? वो चाहते हैं ये आदमी और जिए, ये तो बड़ी काम की बातें कर रहा है, ये तो बड़ा ऊपर वाला बंदा है, यार क्या बात है। ये दो मैच जो उनको दी गई वो पर्पसली दी गई और यीशु मसीह ने दूसरी को, पहली को रिजेक्ट किया और दूसरी को सिलेक्ट किया। यीशु मसीह ने ये भी पर्पसली किया। यीशु मसीह को पता था मैं प्यासा हूं, उन्होंने अपनी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए निकाह किया, बल्कि खुदावन मेरे नजदीक जो खुदावन मुझे रिवील करता है कि ये खुदावन यीशु मसीह पुराने और नए दौर को प्रेजेंट कर रहे हैं। पुराना दौर क्या है? वो यहूदी जिनमें वो आया वो पुरानी में है। वो यीशु को क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने यीशु को सूली पे चढ़ा दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा मार दो। जितनी दफा भी पिलातुस ने पूछा, नहीं इन्हें सलीब दो, बराबर को छोड़ दो। यीशु मसीह को पता है, क्योंकि यीशु मसीह सब जानकर कह रहे हैं। और देखा तो यीशु मसीह ने कहा ओके, अब बारी किन की आ गई, ये गैर कौम है रोमी, सिर्फ 18 घंटे पहले मिले हैं, सिर्फ थोड़े से अरसे में मिले हैं, लेकिन खुदावन ने उनके दिल को बदल दिया। उन्होंने यीशु मसीह की शख्सियत को देखा और वो चाहते थे कि यीशु हमारे साथ रहे। यीशु ने आज जो अपनी प्यास शो की वो उन रोमियों के लिए शो की। हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम उनके साथ चलते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन हो सकता है खुदा ने खास्ता कि हम शायद दूसरे ग्रुप की तरह बैठ के सिर्फ देख ना रहे हो। आज यीशु मसीह मेरा और आपका प्यासा है, हमारी रूहों का प्यासा है। वो चाहता है कि हम उसकी प्यास को बुझाएं, हम मोहब्बत में आगे बढ़ें, हम उसकी कुर्बानी को महसूस करें, क्योंकि वो हमारी जिंदगियों में अपना काम करना चाहता है। तो खुदा यीशु मसीह की प्यास जरूरी थी। प्यास मेरी और आपके लिए प्यास है। आज अपनी जिंदगियों को पेश करें। हो सकता है हम सारे जितने इस टाइम कलीसिया में बैठे हुए हैं, हमारी जिंदगी खुदा के साथ तो चल रही है, उस मसरूफियत में हम शरीक तो है। क्या हम पहला ग्रुप है या दूसरा ग्रुप है? जहां भी खड़े हैं अजीजों, हमें खुदा यीशु मसीह की प्यास को बुझाना है, अपने आप को पेश करना है, ताकि खुदा यीशु मसीह अपनी प्यास को बुझाकर जो कोहे कलवरी पे उसने हमारी खातिर जान दी, और इतना बड़ा जो आगे इससे आने वाला कलमा है, क्योंकि उसके लिए उसको ताकत की जरूरत थी। और यकीन मानिए कि जब यीशु मसीह ने वो चूस लिया जूफे पे वो सिरका, तो उसके बाद यीशु मसीह ने जो छठा कलमा वो खुदा की हजूरी में पेश किया, क्योंकि वो फताबंदी का कलमा था, वो सब इख्तिताम का कलमा था। तो मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको जरूरत है कि हम यीशु मसीह की प्यास के लिए, प्यास बुझाने के लिए अपने आप को पेश करें। खुदा की जिंदा आपका हालेलुया।
ساتھی کا نام چلتا ہے. تو آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں, خدا ان کی شکر گزاری کریں اس مبارک دن کے لیے, اس مبارک وقت کے لیے. آئے ہم سب خدا ان کے نام کو دھنیواد کریں. Praise God. Thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah. میری درخواست ہے برادر البرٹ سے کہ وہ شکر گزاری کی دعا میں عمل کریں. Hallelujah Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Praise Jesus. خاموش نہ رہیے. Yes, yes. آج پرامدی کا دن ہے. Yes, Lord. آج للکارنے کا دن ہے. آج ہمارا سوکھ کا دن نہیں ہے, ہمارے چپ بیٹھنے کا دن نہیں ہے. Yes Lord. 2000 سال پہلے کوئی ہماری نیت سے جان دی. Oh, hallelujah. آج ہم اپنی اس تمام در ایکٹ کے لیے ہم خداوند کی شکر کریں. خاموش نہ رہیے. آج کا وہ نہیں ہے ہماری زندگیوں میں. آج کے مندی کا دن کمائی کے لیے واپسی دکھائی, اس نے ہمارے لیے 2000 پہلے جان دے دی ہے. آج جس کے لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہیں, اور راج صاحب آساندار میں گزارش کروں گا تمام کے بھائی سے کھڑے ہو جائیں پوری زندگی. آپ کے شکر گزار ہیں خداوند. آج کے دن کے لیے خداوند جو ہم یہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں خداوند, آج ہمارے لیے دکھی کا یا افسوس کا یا افسوسی کا دن نہیں ہے خداوند. ہمارے لیے خداوندی کا ہے خداوند. ہمارے لیے اور دعا کرتا ہوں خداوند یہ سال ان تمام گزرے سالوں کی مالیدہ ہوں. یہ گڈ فرائیڈے تمام گزرے گڈ فرائیڈے کی مالیدہ ہوں. یہ کنوار جتنے ہو چکے ہیں خداوند, اے خداوند گئے سالوں کی طرح یہ ہم اگلے سال کے لیے نہ رکھیں کہ یہ دن آئے ہم دوبارہ ان کلمات کو بیان کریں گے. آپ کا صلیبی ہر ایک کلمہ ہماری زندگیوں میں گھر کرے. آپ کا وہ کلمہ جو آپ کے وہ کلمات ہے جو صلیب پہ گئے ہمارے لیے کہتے ہیں خداوند, ہمیں اپنی زندگیوں میں لینے والے بن سکے خداوند, اور خداوند توبہ کرنے والے بن سکے, اور آپ کی طرف رجوع لانے والے بن سکے خداوند. راشی آپ نے خداوند کے زور کو مانگیے, اپنے لیے خداوند کے زور کو مانگیے, اس زور کو مانگیے. خداوند یہ سال ہم خالی نہ جائیں,
ये गुड फ्राइडे हमारी जिंदगियों में एक गुड फ्राइडे ही ना बन के रह जाए। ये मौत हम हर साल इसी तरह अफसोस या दुख में ना मनाएं, हम अपनी जिंदगियों में उस खुदावन की कुर्बानी को जो हमारे लिए की गई थी, वो कोड़ों की मार, वो जियत, वो जिल्लत, वो रसवाई, वो बरहंगी जो से हमारे लिए सही, वो जो हमारे लिए थोड़ी देर के लिए आप लोग इमेजिन कीजिए और अपने आप को उस जगह पे, उस कलवरी के पहाड़ पे पास लेके जाइए और उस दर्द को, उस तकलीफ को आप अपनी जिंदगियों में देखिए और बर्दाश्त कीजिए और सोचिए कि हमारे खुदावन ने हमारे लिए क्या कुछ ना किया। और आज भी अगर हमारी जिंदगियां नहीं बदलती, आज भी अगर हम नहीं बदलते, आज भी अगर हम अपनी जिंदगी में यू टर्न नहीं देते उस नींद की तरफ, वो कुर्बानी हमारी जिंदगियों में फायदेमंद नहीं है। आज अपने लबों को खोलिए, अपने लबों को खोलिए, क्योंकि आज मैं जानता हूँ मेरा ईमान है और रास्ता आपका प्यार, आपकी मोहब्बत है कि आपने हमसे इतना प्यार किया, आपने लोटे को हमारे लिए बख्श दिया और उसके प्यार की वजह से सलीब पर हमारे लिए कर दिया। शुक्रगुजारी करते हैं उसकी मौत के लिए, उस घोड़ों की मार के लिए, आज मेरी जान की जिंदगी के अपने लिए खुदा अपने आप को आपके हुजूर पेश करते हैं। खुदा आपने उस सलीब में के कलमात कह के ये नहीं जानते खुदा ये क्या करते हैं, माफ कर खुदा। आज भी हमारे लिए आप अपने आसमानी बाप से उस रिक्वेस्ट को, उस माफी को आज भी आप हमारे लिए कहते हैं कि हम नादान हैं, नासमझ हैं, जाने अनजाने में हम इंसान होते हुए गलतियां करते हैं, लेकिन आप आज भी हमें मुआफ करते हो, आज आप भी हमें मुआफ करते हो। और मैं दुआ करता हूँ खुदा आज इस समय, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, इस छत के नीचे जान, हर जिंदगी, हर रूह के लिए खुदावन, वो पहला वार जो पतरस ने किया और 3000 जाने बची, और आज मैं दुआ करता हूँ इस छत के नीचे जान जिंदगी के लिए खुदावन, अभी तक किसी रूह ने, किसी जान ने भी अगर मुकम्मल तौर पर खुदावन तौबा नहीं की, अगर आज मैं दुआ करता हूँ हर एक जान, हर जिंदगी खुदावन बचे और आपकी तरफ रजू लाए और आपको शुक्रगुजारी करने वाली बन सके और आपके नाम को पुकारने वाली बन सके खुदावन, ताकि आने वाले सालों में खुदावन इन जिंदगियों से गवाही हो, इन जिंदगियों से आपके नाम को ऑनर हो और आपके नाम को जलाल हो और आपके नाम की महिमा हो खुदावन। आने वाले तमाम कलमात के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, और आप इन गहरे भेदों को, उन पांच बातों को, उन गहरी बातों को आपके खादिमीन पे मांगता हूँ जिनके जरिया से तू कलाम करने को है खुदावन, उन कलमात के जरिया से खुदावन हर एक जान, हर एक जिंदगी के दिलों, जिंदगी पर चोट हो जाए खुदावन, जैसे पतरस ने वाज किया खुदावन, दिलों पे चोट हो और जिंदगियां बदल गई खुदावन। इन बाकी दो कलमात के लिए मैं आपसे झुकता हूँ खुदावन, अभी तक जो जिंदगियां खुदावन यहाँ पे ऐसे जिस्मानी तौर पर बैठे हैं खुदावन, मैं दुआ करो जिंदगियां बदले, उनके दिलों पे चोट लगे खुदावन, आज वो आपका इकरार करें खुदावन, राशा बार राखा सी तेरे खासी रखो सुन और राती का राती और राती मारा को सुई से अल्लाह रब ग्लोरी हेवनली फादर, आपके जो झुकते हैं खुदावन, छुइएगा, बरकत दीजिएगा तमाम ने मौजूद हर एक जान, हर एक जिंदगी को, आने वाले तमाम समय को आपके कभी खातों में देता हूँ खुदावन, आपकी प्रेजेंस, आपकी हजूरी को मांग लेता हूँ खुदावन, इस कमरे की हवाओं और फिजाओं पर आपके लहू को मांगता हूँ खुदावन, हवाओं और फिजाओं पर आपके लहू को मांगता हूँ खुदावन, ताकि जो बाकी समय है खुदावन ये आपकी हजूरी में बंधे रहे खुदावन, हर एक जान, हर एक जिंदगी आपके रूह को फील करे, आपके रूह को फील करे, छुइएगा, ब्लेस कीजिएगा, बरकत दीजिएगा, आमीन आमीन।
हालेलुया, 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 हालेलुया। इस तरह हम खड़े रहेंगे और पाए विचार मिलकर अब हम 27 पे आगे बढ़ेंगे। तशरीफ रखिएगा। छठा कलमा फतह का कलमा, यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। खुदा उनके पाक कलाम के बड़े सुने और समझे जाने में उसकी खास बरकत हो। आमीन। अजीजों, छठा कलमा जो कि फतह का कलमा है, इस कलमे को बयान करने के लिए, इस पर रोशनी डालने के लिए मैं दावत दूंगा ब्रदर यासिर मुश्ताक को कि वो सामने आए और छठे कलमे की बाबत हमसे बात करें। आइए हम खड़े होते हैं। ये कलमा इसे फतह का कलमा कहा गया और आज सुबह से मैं फतह को महसूस करता हूँ। कल रात बहुत देर सोया, सुबह 5 बजे और 8 बजे मैं उठा, क्योंकि ये फतह मुझे सोने नहीं देती थी। इससे पहले के कलमे में बयान किया कि यीशु प्यासा था, यीशु प्यासा था। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप यीशु के प्यासे, आप यीशु के प्यासे हैं? और प्यासे होते तो वो वक्त यहाँ पे होते। आप प्यासे होते तो चर्च बर वक्त होते। इतना बड़ा दिन है जिसे फतह का दिन कहा गया, जिसपे गलबे का दिन कहा गया। और मैं कहता हूँ कि यीशु अच्छा है, 2000 साल पहले ही सलीब, और आज होते तो पब्लिक ही नहीं थले होंगे। आज होते तो पब्लिक ही नहीं थले होंगे। यीशु ने सब कुछ पूरा करके चले जाना था, शायद उसको उतार लिया भी जाता तो पब्लिक अपने घरों तोड़ना शुरू की, वो जो आगे खाली सलीब देख ली। आप यकीन करें, मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि जिस दिन खुदा मुझे अपना चर्च देगा, मैं उस टाइम के बाद कमरा बंद कर दिया करूँगा, दरवाजा बंद कर दिया करूँगा। नो एंट्री। जो खुदा का एहतराम नहीं करता, और ये फतहमंदी का नारा, ये फतहमंदी का कलमा है। आज सुबह से मैं उस फतहमंदी को अपने अंदर महसूस करता हूँ। आइए उस फतहमंदी के नारे को पुकारिए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शैतान भागता है। यीशु मसीह के नाम का पुकारना
آہستہ 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 کی تسی چھٹا کلمہ کھلوگے سن سکتے آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کا دن بڑا میں اندر آیا, اندر آتے ہی مجھے ایسے پہلے شخص سے ملاقات ہوئی جڑا باہر جڑا اپنے منہ چ نسوار سٹ کے اندر آ کے میرے ملیا میں دندا سے ویکھی کہ نسوار بھی پھنسی ہوئی. See, what is the value? آپ اس دن کو کیا ویلیو دیتے ہو, آپ مسیحا کو کیا ویلیو دیتے ہو, مسیحا کو کیا ویلیو دیتے ہو. غور کیجئے پورے سال میں کتنے ویک ہوتے ہیں. سیلز ٹیم کو پتا تھا 52 اور 52 ویک میں ہر بار جمعہ آتا ہے, ہر بار جمعہ, لیکن ایک جمعہ مسیحت میں ایسا آتا ہے جسے ہم گڈ فرائیڈے کہتے ہیں. ایک جمعہ ایسا آتا ہے جسے ہم گڈ فرائیڈے کہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہے نا گڈ فرائیڈے کو بھی افسوس فرائیڈے کر کے منا رہے ہیں. سر سٹ کے آرام دے نال تالیاں نہیں بجانی, بڑی سنجیدگی کے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ یہ فرائیڈے آپ ایسے منائیں جیسے آپ کو ہر چیز پہ فتح ملی ہے, ہر چیز پر فتح ملی ہے. اور میرے مسیح نے, آپ کے مسیح نے یہ کہہ کر تمام ہوا وہ فتح کا نعرہ بلند کیا کہ سب چیزیں میرے وسیلے سے تمام ہوئی, تمام ہوئی. سنیے, پیدائش کی کتاب میں چھٹے دن میں لکھا ہے کہ خدا نے سب کچھ بنایا اور اس پر نظر کی, اس پر نظر کی اور کہا اچھا ہے, اچھا ہے. اور جو چیزیں خدا نے بنائی اس سب کی شکل بدل گئی. وہ شیر جس کا نام آدم خود رکھتا ہے وہ شیر خون خوار ہو گیا, وہ آدم خور ہو گیا. ہر ایک جانور انسان کی جبلت بدل گئی. لیکن میرا مسیح, تیرا مسیح چھٹے کلمے میں کہتا ہے کہ تمام ہوا, وہ تمام کرتے ہوئے سب کچھ اپنی محبت سے بدلتا ہوا نظر آتا ہے, بدلتا ہوا نظر آتا ہے. ہر چیز کی جبلت جو ہے وہ بدل گئی, شبیہ بدل گئی. وہ اور میرا مسیح, آپ کا مسیح چھٹے کلمے میں کہتا ہے تمام ہوا, اور ہر چیز کو وہ اپنے ان الفاظ سے مکمل کرتا ہوا نظر آتا ہے, پورا کرتا ہوا نظر آتا, پورا کرتا ہوا نظر آتا. پرانے وقتوں میں اگر کوئی مجرم ٹھہراتا اس کے تمام جرم جو ہے ایک پیپر پر لکھ کر اس کے قید خانہ کے باہر لگا دیے جاتے, اور قید خانہ کے باہر
लगा दिए जाने के बाद अगर कोई शख्स मुकम्मल तौर पर उस शख्स का जुर्माना दे, मुकम्मल तौर पर पेड करे, तो उस दस्तावेज पर मोहर कर दी जाती और लिख दिया जाता कि ये मुकम्मल तौर पर पेड है, अब ये जुर्मों से आजाद है, और उस शख्स को वो दूसरा शख्स खरीद के आजाद कर देता था। मेरे लिए, आपके लिए मेरे मसीह ने सलीब से पुकार कर कहा कि तमाम हुआ, तमाम हुआ। वो जो बनीनो इंसान गुनाह में फंसा था, वो अपने गुनाहों से आजाद हुआ, निजात हुआ और तमाम हुआ। वो बनीनो इंसान जो फंसा था, तबाह था, वो उस दिन उसके पुकारने से आजाद हुआ। वो अपनी जिंदगी में कहता है, बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, रिहा करूंगा। वो मसीहा वो पुकार कर कहता है कि तमाम हुआ। अरे मैंने तुझे तेरे तमाम गुनाहों से आजाद किया। जब वो पैदा होता है, कहते हैं कि उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को क्या करेगा? गुनाहों से निजात देगा। अरे वो पुकार कर कहता है कि तमाम हुआ, तो वो तेरे गुनाहों को, मेरे गुनाहों को सलवरी कलवरी के उस पहाड़ पर जो है वो पुकार कर कहता है तमाम हुआ। वो तुझे और मुझे मुकम्मल तौर पर आजाद करता है। क्या आज इस दिन आप आजाद हुए या नहीं हुए? क्या आप उस आजादी को अपने अंदर फील करते हैं? क्या आप उस आजादी को रिसीव करते हैं? क्या मैं आजाद हूं? सुनिए, दानियल गुलामी में था, असीरी में था, लेकिन उसकी दुआ को रोक ना पाया, ना रोक पाया। मैं और आप जो है, हमें मसीह ने सलीब पर से आजाद किया है, फिर हम क्यों शैतान और इब्लीस की गुलामी में? क्यों हम अपनी ख्वाहिशों की गुलामी में हैं? क्यों हम अपने आप को आजाद करने के लिए तैयार नहीं? क्यों हम आज भी गुलामी की जिंदगी जीते हैं? क्यों आज भी हम मसीह और उसकी अलूहियत को नहीं समझ पाते? क्यों आज हम मसीह से दूर हैं? क्यों मसीह ने कहा कि तमाम हुआ, लेकिन आप और मैं ये कहना ही नहीं चाहते कि तमाम हुआ, बस प्लीज तेरा कोई बस नहीं मेरी जिंदगी पे, बस अब मैं अपनी जिंदगी अपने मसीह के साथ आजादी से जीऊंगा। आज मैं और आप आज भी गुलामी की हालत में है। मेरे मसीह ने आपको कई हजार साल पहले आजाद किया और कहा तमाम हुआ, तमाम हुआ और तमाम हुआ। लेकिन आप और मैं अपने गुनाहों से, अपने जिस्म की ख्वाहिशों से अपने आप को आजाद करके नहीं कहना चाहते कि तमाम हुआ। क्या आज इस जगह पर आप अपने आप को आजाद देखना चाहते? क्या आज आप और मैं ये पुकारना चाहते हैं कि मसीह तेरी सलीब ने मुझे आजाद किया, और तूने जो कहा सलीब पर तमाम हुआ, और आज मैं अपने गुनाहों को, अपनी तमाम गलत को, अपने तमाम उन रविशों को, शहवत परस्तियों को, ज़नाखारियों को, झूठ को, मक्कारी को तेरी सलीब के नीचे लाके कहता हूं कि तमाम हुआ, तमाम हुआ, तमाम हुआ। क्या आज आप तैयार हैं? अगर आप तैयार नहीं तो ये 7 कलमात सुनने का भी फायदा नहीं। आज आप तैयार नहीं अपने आप को उसके ताबेदार करने में, उसकी ताबेदारी में देने के। वो एक बेटा था, उसने बेटे की सूरत में ताबेदार रहा। वो खुदा था, उसने आपको आजाद किया। वो खुदा था जो तेरे गुनाह और मेरे गुनाह को अपने ऊपर लिए कहता है तमाम हुआ। आज मैं और आप कुछ वक्त तक किसी का बोझ तक नहीं उठा पाए थे। अरे कुछ वक्त
ہم اس کا بوجھ لینے کے بعد پائی نے کہنا پاجی اے معافی، آج تو تیری راہ الگ تے میری راہ الگ، تیرا رشتہ میرا رشتہ تمام ہوا، لیکن ایک مسیح وہ ذات ہے جس نے اپنے آپ کو تمام کر کر تجھے زندگی اور رہائی اور آزادی بخشی ہے۔ کیا آج آپ تیار ہیں؟ آج آپ تیار ہیں؟ تو پھر اپنے گناہوں سے کہیے کہ آج کے دن میرے گناہ میرے مسیح نے تمام کر دیے۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں، ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس وقت ہے۔ آئیے ہم خدا کو پکاریں اور کہیں کہ خدا تم نے مجھے آزاد کیا ہے، میں غلام نہیں بلکہ آزاد ہوں۔ کہیے خدا سے، کہیے منہ سے کہیے کہ میں غلام نہیں میں آزاد ہوں، میں غلام نہیں میں آزاد ہوں، میں غلام نہیں میں آزاد ہوں، کیونکہ مجھ پر پردے کا لاگو ہے۔ کوئی بھی قربانی، کوئی بھی مینڈا، کوئی بھی بیل، کوئی بھی بھیڑ اس قربانی کو پورا نہیں کرتا تھا جو میرے مسیح نے اپنے جسم کو قربان کر کر تیرے لیے میرے لیے یہ کہہ کر کہا کہ تمام ہوا۔ آج میں اور آپ کوئی برا قربان نہیں کرتے، کیونکہ میرے مسیح نے اپنے آپ کو قربان کر کر کہا کہ تمام ہوا۔ آج سے تو بروں کی قربانی نہیں دے گا، آج تو اپنے آپ کو اس کروس کے نیچے کھڑا کر اور کہہ کہ میں آج سے تمام ہوتا ہوں۔ میں نہیں رہتا کہ میں نئی مخلوق ہوں اور میرے اندر سے پرانی چیزیں جاتی رہی اور کہے کہ میں اپنے آپ کو خدا کے تابع کر کے کہتا ہوں کہ تمام ہوا، تمام ہوا، تمام ہوا۔ آئیے آج اس وقت اس گھڑی جو میرا مسیح تیرا مسیح وہ بے اب برا اپنے آپ کو تمام کرتا ہے اور تجھے اور مجھے آزاد کرتا ہے۔ آج تیری باری ہے، آج تیری باری ہے کہ تو اس کی بات پر عمل کر، اس بات پر عمل کر تو تمام کام جو تیری زندگی میں تجھ سے خدا اور صلیب سے دور لے جاتے ہیں ان کے لیے توبہ کر اور کہہ تمام ہوا، تمام ہوا، تمام ہوا۔ آئیے دعا میں جھکیے اور کہیے اے رحیم اور غیور خدا، میں اس لائق نہیں، پھر بھی تو نے میری خاطر اپنی جان کو قربان کر کے کہا کہ تمام ہوا۔ آج میں میرا گھرانہ اپنے آپ کو تیری کروس کے نیچے لے کے آتے ہیں، اس لہو سے دھوتے ہیں، ان گناہوں سے آزاد ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام ہوا، تمام ہوا۔ آمین، آمین۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ آمین۔ کھڑے رہیں گے اور پائے کے ساتھ مل کر گیت گائیں گے۔ تشریف رکھیے گا۔ 7واں کلمہ ملاپ کا کلمہ۔
मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत में लिखा है, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत। आमीन। आइए कुछ पल के लिए अपने स्वरों को झुकाएं या आंखों को बंद करें। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें आज के इस दिन के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज हालेलुया। आसमानी बाप की शुक्रगुजारी करते हैं इस मुबारक जुमा के लिए आपने हम सबों को दुरुस्ती से ये फर्ज बख्शा कि हम सब वहां मिलकर खुदा आपके कदमों में झुके और आपके कलाम की अपनी बातों पर गौर कर सके। खुदा यीशु जी आज अपने कलाम की कुदरत के वसीला से आने वाले हर एक बेटे और बेटी को, सुनने वाली हर एक जान को बड़ी बरकत अनायत फरमाइए। छूइए छूइए, ब्लेस कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। 7वां कलमा अजीजों, मिलाप का कलमा। बाप के साथ फिर से उसी फेलोशिप, उसी रफाकत में उसके साथ फिर से एक होना। खुदा यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये बाप से मोहब्बत, भरोसा और कामिल यकीन की निशानी है। कफारे का काम सिर्फ कलवरी के पहाड़ पर नहीं, ये बागे गतसमनी से शुरू हो गया था। और लूका इस बात को बड़ी वजाहत के साथ बयान करता है। लूका पेशे से डॉक्टर था, अपने वक्त का एमबीबीएस डॉक्टर था लूका। और लूका के लिए बड़ा जरूरी था कि उन बातों की तहकीक करे कि बागे गतसमनी में हुआ क्या। खुदावंद यीशु मसीह के साथ सिर्फ 3 शरीर दागे गए। केड़ा केड़ा सी वाला? वो बहुत सारे क्रिश्चियन बैठे हैं, पतरस, याकूब और यूहन्ना। याद रखो बुनियादी कमा जे ਅਸੀਂ आए दिन डिस्कस करते रहते हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह के इनर सर्कल के लोग थे। और अगर आप अलाजील का मुतालिया करो, जैसे जैसे खुदावंद यीशु मसीह का सफर सलीब की तरफ बढ़ता जा रहा, सर्कल छोटा होता जा रहा, लोग घटते जा रहे हैं। आवाज में 12 दिन 70 साल बनादी के लिए जाते थे। अब जैसे जैसे यीशु यरूशलेम की तरफ बढ़ता जा रहा है, वो 70 लोग इधर गए, 12 तो नहीं 11 रह गए। गतसमनी में पहुंचे 11। अब जब यीशु मसीह आ गए तो आपके लिए जा रहे हैं। उन्होंने 11 में भी 24 3 ना हो गए, बाकी पीछे। जैसे जैसे सलीम की तरफ सफर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे कुछ कुर्बान करने का वक्त आता जा रहा है, सर्कल छोटा होता जा रहा है। आपके लिए मैसेज है, जैसे जैसे मसीह में बढ़ते जाओगे, कुर्बान करते जाओगे, आपका सर्कल टाइट होता जाएगा। जारियां छोटियां जानियां, रिश्तेदारियां भी छोटियां जानियां। कईयां को लगेगा बहुत रूहानी हो गया, हज को रुपया हाजी साहब हो गए, हाजी साहब दुआ शुरू करती है। ये ताने मैंने सुनने पड़ेंगे क्योंकि सर्कल टाइट हो रहा है। चलो सर्कल टाइट होना शुरू हो जाए, यारियां दोस्तियां छोटियां जान, समझो मैं दुनिया से काट रहा था, ये सुचवा कर टाइट होता जा रहा था, सारियां दोस्तियां पीछे रह गई। खुदा यीशु मसीह कहते हैं फौजी आ गए, और लिखा हुआ है इंग्लिश बाइबल में बैंड था, इट वाज बैंड। ये कोई 10 15 20 लोग नहीं थे बागे गतसमनी में, बैंड था बैंड। और बैंड जो है ये रोमी फिगर है, रोमी बटालियन का फिगर है। ये 100 सिपाही हो, उसको बोलते हैं सेंचुरी। तो जे 600 हो तो उसको बोलते हैं बैंड। तो जे 6000 हो उसको बोलते हैं लेजेंड। और तुसी अंदाजा करो, यीशु मसीह नूं बाग दे विच फड़न वास्ते बैंड आया सी, मतलब 600 सिपाही आए थे ते नेज़े तलवार लैके आए सन। नेज़े तलवार नाल लिआउण दा मकसद की सी? उन्होंने डर सी उत्थे कोई हरकत हो जाए।
हालांकि फड़क तो सिर्फ एक बंदे ने आए, लेकिन फिर भी ऐसे फाले लेकर आए थे, कहीं ना कहीं अंदर खौफ था कि उसे कोई हलचल ना मच जाए, उसे कोई हरकत ना हो जाए। खुदा यीशु ने पतरस को कहा कि नहीं, जे मैं लड़ना ही ना तो मैं आसमानी बाप से दरख्वास्त करता, वो 12 तबन फरिश्तों की भेज देता। 12 क्यों है, बट 14 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, या 5 क्यों नहीं, क्यों 12 का फिगर? 11 शगिर्द यीशु ने तो 12वां यीशु आ जो तब है कौन इस विच शगिर्द 11 सब, एक शगिर्द के लिए एक तमन, तो एक तमन में कितने फरिश्ते होने वाला? 6000 लेजन लश्कर। तुसी हिसाब लाओ, एक बंदे वास्ते यीशु ने लश्कर अलाट किया है। अरे आपके पास क्या कुदरत है, आपके पास क्या पावर है, आप समझे नहीं हो। आप में से हर एक शख्स के लिए 6000 फरिश्ते हर वक्त तैयार रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो कम हो वैसे, तो कम हो वैसे, ईमानदारों को अपने इख्तियार का पता ही नहीं है। सारा दिन की किताब बताती है एक फरिश्ता 1,85,000 को हलाक करने की कुदरत रखता है। ते सोचो जे उसे जब समरी दे विच 12 तबन आ जाते, यरूशलेम शहर ही हुंजिया जाना सी पूरे दा पूरा, उथे पूरे शहर च कोई नहीं सी बचना। एक फरिश्ते की इतनी ताकत है। आप में से जितने लोग यहां पर बैठे हैं, यू आर सो ब्लेस्ड, यू आर सो पावरफुल। हर एक शख्स के लिए 6000 फरिश्तों की एक लश्कर, एक तमन तैयार रहता है। और अफसोस की बात यह कि ईमानदार जानता नहीं कि मेरा इख्तियार की जो एक फरिश्ता तयन किया वो 1,85,000 का सकता है। तुसी हिसाब लाओ, 6000 तो आल फिर रहे हो। अरे कौन है जो हमारे खिलाफ है? कौन है जो खड़ा हो सकता है? मैं गल करने कफारा बाग समझी तो इंडिया से शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि लूका 22 बाब में बताता है उसका पसीना बड़ा खून के कतरे बन बन के गिरता था। इट्स अ हाई ब्लड प्रेशर, हेमाटाइटोसिस। मेडिकल साइंस कहती है इट्स अ हाई ब्लड प्रेशर। दो काम होंगे, हाई ब्लड प्रेशर जब इंसान का ब्लड प्रेशर अपने पीक लेवल पे चला जाए, असिस्टेंट को पता होगा सिस्टर जी आप बोला, दो काम होते हैं। मेडिकल साइंस कहती है दिस इज कॉल्ड हेमाटाइटोसिस। या तो दबाव की नस फट जाती है, बंदा हलाक हो जाता है, या रेयर केस ये है कि आपके मसाब खुलते ब्लड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। लेकिन यीशु की बात जब समनी में हाई ब्लड प्रेशर की नस नहीं फट सकती थी, क्योंकि वो बाद में हलाक होने के लिए वो सलीब पर कुर्बान होने के लिए आया। खुदा उसका कलाम बताता है उसका पसीना खून की बूंदे बन बन के नीचे गिरता था। लुका चुके आप एमबीबीएस डॉक्टर सी होंगे, बड़ा जरूरी से थोड़ा नोट करके लिखना, क्योंकि ये उसकी फील्ड की बातें थी। लेकिन सवाल ये है वो गतसमनी, यीशु जब जब यरूशलेम में आया उसने हमेशा बाय गतसमनी का इंतखाब किया। और शहर होर लिया से कई बात अंजीर के बागात थे और बथेरे बागात थे, लेकिन गतसमनी में वो हर दफा शाम को जब जब यरूशलेम आता था वो बाय गतसमनी में दुआ के लिए जाता था। वाई? क्योंकि बाय गतसमनी उसको हर दफा उसका मिशन याद दिलाता रहता था। और जब जब बाय गतसमनी में आता था ये बात उसको याद दिलाता था कि आने वाले दिनों में इसके साथ होगा क्या। ये लफ्ज गतसमनी के गौर पर तो सारी गल खुल जाती है। गत का मतलब है तेल, समनी का मतलब है प्रेस। कुचल के जैतून का तेल उस बाग में निकलते थे, पत्थर के लिए प्रेस मशीना पहले आसान होता क्या था, जैतून को लेते थे और पत्थर की चक्की में डालते थे, फिर 3-4 बंदे रोल के रगड़ा देते थे। और जब जैतून उस चक्की के अंदर कुचला जाता था उनका अर्थ बाहर आ जाता। इसलिए यीशु जब भी यरूशलेम आता सी और ऐसे ही बात से जाता सी जहां पर जैतून का कुचले जाने से अर्थ निकल जाता था, क्योंकि वो जानता था एक शाम ऐसी ही इसी बाग में जिस तरह से जैतून का कुचले जाने से अर्थ निकल जाता है, आजमाइश में वो भी कुचला जाएगा और मेरी और आपकी खातिर उसका भी पसीना वो लहू की बूंदे बन बन के टपके।
दिन ऐसी आजमाइश में से, हाई ब्लड प्रेशर में से कुचले जाना था। इसलिए जब जब यीशु यरूशलेम आता था, खुदा उनका कलाम बताता वो पागे गतसमनी च ऐसे नहीं तो पुलिस आ गतसमनी से पहुंच नहीं था क्योंकि यहूदा को पता सी अच्छा बादा खाना च नहीं लगा यीशु अच्छा मैंने पता कितने होएगा और पूरी पटाखी लाके तोड़ पे आके बाहर तो लोग फिर फिर मिलेगा। He knows the location, उसको पता था कि यीशु के बाला खाना से नहीं होएगा तो कितने होएगा। क्योंकि कई बार यीशु के साथ बाले गतसमनी में जब यीशु दुआ करने आता था वो यहाँ पर आता रहा। तूफान का काम गतसमनी से शुरू हुआ। मरकस बताता है सुबह 9 बजे खुदा यीशु मसीह को सलीब पर लटका दिया गया। एक बात याद रखना, वो मरा हमारी खातर था लेकिन जिंदा हमारी खातर नहीं हुआ। एक अभी याद रखिए वो मरिया साडी खातर सी, जिंदा साडी खातर नहीं होया। क्यों? क्योंकि वो आप जिंदगी है, वो आप जिंदगी है, जिंदगी उसके किरदार की खूबी है और कोई उससे उसकी खूबी को छीन नहीं सकता। इसलिए वो मरा तो हमारी खातर, वो मर गया दफन हुआ लेकिन वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। ये उसके किरदार की खूबी है, वो जिंदगी है। चूंकि वो जिंदगी है इसलिए मौत उसको रोक ना सकी, मौत उस पर गालिब ना आई। ऐसा खुदा का कलाम कहता जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। आपके पास बेटा है तो आपके पास जिंदगी है। ये दुनियावी जिंदगी की गल नहीं होती, अपनी जिंदगी। खुदा उनके कलाम में लिखा तीसरे पहर दोपहर 3 बजे खुदा ने पुकार कर कहा मैं बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और जाके मैंने बात की, अंधेरा हो गया। यस दैट इज ट्रू, लेकिन अंधेरा होने की नौबत क्यों आई? अंधेरा सलीब पर जरूरी क्यों था? बगैर अंधेरे के मर्जी काम नहीं हो सकता। ये गल्ला अंधेरे तो बगैर मर्जी हो सकती है सर, बट व्हाई डार्कनेस? आखिरी कलमात जो है वो अंधेरे में बयान किए गए। खूब अंधेरा छा गया, गहरी तारीकी छा गई, इतनी गहरी तारीकी और डर गए लोग। अंधेरा क्यों अरमान जरूरी था? तारीकी का वहां पर आना क्यों जरूरी था? अब इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए। हैकल की कुर्बानियां हो रही हैं, ईद फसा का मौका है। लोग अपने अपने बड़े लैके लाइन खलोते हैं, काहे बड़े मसरूफ ने, वो भेडू फड़ी जा रहे हैं, सुट्टी जा रहे, फटी जा रहे, कुर्बानियां तड़ातड़ चल रही है, तड़ातड़ चल रही है। और जब कुर्बानियों का सिलसिला जारी था, खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ अंधेरा छा गया। जैसे अंधेरा छा गया, काहिलों की छुरियां उठ गई, क्योंकि कुर्बानियां तारीकी में नहीं हो सकती। इसलिए उनकी कुर्बानियां रोकने के लिए अंधेरे का होना जरूरी था। जब कलोरी के पहाड़ पे खुदा का बेरा पर्रा कुर्बान हो रहा है तो फिर और किसी पर्रे की हाथ तो बाकी नहीं रही। इसलिए दुनिया वालों खामोश हो जाओ, साकिन हो जाओ, खुदा का बर्रा मेरे और आपके गुनाहों के लिए कुर्बान हो रहा है। 10 मसीहा यादें दानिश भाई तो कुर्बानियों का सिलसिला खत्म ही नहीं था होगा। कुर्बानियां मौकूफ की गई, अंधेरा छा गया। हैकल के अंदर दीवारों में फर्श के दरार पै गया, पर्दा साफ हो गया। ये खौफ दिलों में आना बहुत जरूरी था। हैकल बर्बाद ना होती और तारीख में इस तरह के वाकयात शाहिद ना होते तो कुर्बानियां कभी भी मनसूख ना होती। 10 मसीहा आते तो कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहना था। कुर्बानियां रोकने का तरीका यह था, तारीकी छा गई, अंधेरे में कुर्बानी नहीं हो सकती थी कि खुदा का बेअबरा सलीब पर कुर्बान हो रहा है। हालेलुया। खुदा उनके कलाम में लिखा है तारीकी छा गई और उस तारीकी में से खुदा यीशु की आवाज बुलंद होती है। खुदा यीशु कह रहे हैं
ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। स्पिरिट रूह है, याद रखिया जे होली स्पिरिट की गल नहीं जे होंदी। कई मैं कहते सुना होली स्पिरिट खुदा दे, अरे नहीं, होली स्पिरिट बायगत संगी में जुदा हो गया था यीशु से। होली स्पिरिट की आखिरी झलक बायगत संगी में जब यीशु ने कहा मैं हूं, और तेरा है सारे सारे, उसके जलाल के सामने कोई ठहर न सका। उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने पिलातुस के सामने, सदा के सामने बार बार कहा मैं हूं, कोई बंदा नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि अब रूह कुदस और उसका जलाल उसके साथ नहीं, रूह कुदस जुदा हो गया है। अब जब खुदा कह रहा है ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, दैट इज नॉट द होली स्पिरिट। ये उसकी रूह है जो अपने आसमानी बाप के हाथों में सौंप रहा। लिखा हुआ है पुकार कर कहा बुलंद आवाज के साथ। ये अपनी साथ में जुड़े कलमासी कहने की लोड़ सी, क्योंकि वो हर एक हंसने वाले, हर एक दाना कसने वाले को, हर एक जुल्म करने वाले को ये बताना चाहता था मेरा बाप मुझसे जुदा नहीं हुआ, मैं अब भी अपने आसमानी बाप के साथ रिश्ते में हूं। और वो मेरे साथ कनेक्शन में है, मेरे साथ रिलेशन में है। खुदा उनका कलाम बताता है, उसने बुलंद आवाज से पुकार के कहा ताकि हर एक जान सुन ले कि मैं अपनी रूह खुदा अपने बाप के हाथों में सौंप रहा हूं। मेरा दम निकल नहीं रहा, अरे मैं जान दे रहा हूं। हालेलुया। कहता बाप अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्या ना सुना जी, इंसानी जिस्म की सबसे कीमती चीज है स्पिरिट। ये सबसे कीमती चीज है, और उसने अपनी सबसे कीमती चीज और कितने नहीं बल्कि अपने बाप के हाथों में, कि वो जानता था कोई मेरे बाप के हाथों से छीन नहीं सकता, कोई मेरे बाप के हाथों से निकाल नहीं सकता। वो कहता बाप अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसी रूह की बदौलत इंसान अशरफुल मखलूकात है। क्यों? फरिश्तों के पास रूह है, जिस्म नहीं है। जानवरों के पास जिस्म है, जान है, लेकिन रूह नहीं है। और तो जिस्म कोई नहीं और जानवरों के पास रूह कोई नहीं। अब इन दोनों के बीच खुदा ने कौन मखलूक बनाई? आदम, जो जिस्म भी रखता है, रूह भी रखता है, जान भी रखता है। इस सबब से इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है। जिस्म भी रखता है, जान भी रखता है और रूह भी रखता है। इस सबब से मैं और आप सारी मखलूकात से अफजल है। इस सबब से फरिश्ते आपको सजदा करते हैं जिन पे फजल हुआ है, और वो अपने बदन की सबसे कीमती चीज अपने बाप के हाथों में सौंपता। कहता है बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसने अपने बाप को देखा, बाप कैसे काम करता है, जिन्हें खुदा ने 6 दिन सारा कुछ तख्लीक करके 6वें दिन सारा काम तमाम किया और 7वें दिन आराम किया, वैसे खुदा यीशु मसीह सारा काम तमाम करके 6वें कमरे में कहता है तमाम हुआ, और 7वें कमरे में अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सौंप के उसके आराम में दाखिल हो रहा है। हालेलुया। इसलिए वो पुकार के कह रहा बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और याद रखिएगा कलवरी के पहाड़ पर बोला गया हर एक कलमा नबी और फरिश्तों के लबों से निकले हुए कलाम की तकमील था। मिसाल के तौर पर पहला कलमा माफी का कलमा, यशायाह 53 पाप और गुनहगारों की खताओं को बख्शता उन्हें माफ करता है। दूसरा कलमा नजात का कलमा, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा फरिश्ते का बयान, वो अपने लोगों को नजात देगा। तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा, जैसे शमौन बुजुर्ग ने मरियम को पहले कह दिया था कि ये इस्राएल में पत्थरों के उठने और गिरने का सबब ठहरेगा, हत्ता कि तेरा कलेजा तेरा जिलेबी तलवार से छिद जाएगा। चौथा कलमा कफारे का कलमा, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जैसे ज़बूर 22 और उसकी शुरू की आयत, बहुत सारा कलमा मैं प्यासा हूं, जैसे ज़बूर 69
अरे वो मेरी प्यास बुझाने को मुझे सिरका पिलाते हैं। छोटा कलमा तमाम हुआ जैसे ज़बूर उमर की आखिरी आयत। अरे वो अपना काम मुकम्मल करेगा, वो अपना काम तमाम करेगा। इट इज फिनिश्ड। और सातवां कलमा मिलाप का कलमा, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ज़बूर 31 उसकी पहली 5 आयत, जब दाऊद कहता है ए खुदा बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक कलमा अंबिया के और फरिश्तों के कलाम की तकमील था। और खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ऐ बाप, अपने बाप को जमीनी जिंदगी में खुदा ने बड़ा याद किया। मिनिस्ट्री के आगाज से लेकर एयरपोर्ट मिनिस्ट्री के इख्तिताम तक, मिनिस्ट्री के आगाज में देखो पहाड़वास, 5वां बाप, 6वां बाप, 7वां बाप, इन 3 बाप के अंदर कुल मिला के 16 बाप ने अपने बाप को याद किया। उसके बाद आखिरी फंसा यूहन्ना 14 बाप, 15 बाप, 16 बाप, इन 3 बाप को पढ़िए, ये सारे का सारा आखिरी फंसा से मुतल्लिक है। और इस आखिरी फंसा में कुल मिला के 45 दफा उसने अपने आसमानी बाप को याद किया। उसके बाद खुदा यीशु मसीह की आखिरी दुआ यूहन्ना 17 बाप, जिसके अंदर वो शिफात करता है। और 17 बाप के अंदर खुदा यीशु मसीह 6 दफा फिर अपने आसमानी बाप को याद कर रहा है। और अब यहां पर सलीब के ऊपर कलमों का आगाज ऐ बाप तो इनको माफ कर, और फिर इख्तिताम ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और वो अपने बाप से बहुत प्यार करता है। और मैं जब ये पढ़ रहा था, मैं शुक्रगुजारी कर रहा था कि खुदा तेरा शुक्र है जो तेरे बेटे का बाप है, और वो हमारा बाप है जो अपने बेटे की सुनता है, वो हमारी भी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा कहते हैं बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। शेर भाई, वाई स्पिरिट, बॉडी क्यों नहीं? अपनी रूह सौंपी, बॉडी क्यों नहीं सौंप रहे अपने बाप के हाथों में? जिस्म क्यों नहीं सौंप रहा? क्यों सिर्फ अपना रूह सौंप रहा है? बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। वाई नॉट बॉडी? जिस्म क्यों नहीं? क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि इस जिस्म के ऊपर गुनाह ला दे और मेरा बाप गुनाह को देख नहीं सकता। बेशक मेरा बदन जख्मों से चूर है गुनाहों के सबब से, अरे कोरों की मार पड़ी खताओं के सबब से, इन कामों के ऊपर बनी हुए इंसान के गुनाह लादे हुए हैं। इसलिए मेरा बाप इस बदन को नहीं, हाँ मेरी रूह को कबूल करेगा, क्योंकि गुनाह बदन पे है लेकिन मेरी रूह अब भी पाक और साफ है। इसलिए पुकार के कहता है ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम फरमाता है शफकत भाई, अदालत हो चुकी, अंधेरा जा चुका, जुल्म की इंतहा अपने कमाल को पहुंची। अब बेटे ने अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सौंप दी, जो कि महफूज हाथ है, सेफ हैंड्स। अरे अब ये बेटा फिर लौट कर आएगा, लेकिन अब की बार ये बड़े के तौर पर नहीं, अब की बार ये बादशाह के तौर पर। और हर वो जान जिसने उसे छेड़ा वो देखेंगे और मातम करेंगे। अरे जो इसको कबूल न करते थे अब वो नहीं, अब ये उनको रद्द करेगा, अब ये उनकी अदालत करेगा। जो इसे देखना नहीं चाहते थे अब ये उनसे कहेगा मेरे पास से दूर चले जाओ, मैं तुमसे वाकफ नहीं। कि अब की बार बेटा जब आएगा, अरे अब की बार कुर्बान होने के लिए नहीं, अब की बार तो वो अदालत करने के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर 31 दानिश भाई हर यहूदी की दुआ है। अपने दिन का इख्तिताम करते हैं, रात में बैठ के फैमिली प्रेयर लिए उधर दुआ करते हैं। बाप, हर बच्चा, हर जवान, हर बुढ़ा कहता है मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं कहता हूं अब से ये दुआ आपकी दुआ हो जाए। बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं।
ऐ बाप मैं अपने मामलात तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐ बाप मैं अपने हालात तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐ बाप मैं अपना रोजगार तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐ बाप मैं अपना खानदान तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐ बाप मैं अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना कारोबार तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि जो बाप के हाथों में है कोई उसे छीन नहीं सकता, कोई उसे बर्बाद नहीं कर सकता। हालेलुया। आज मुबारक जुमा के रोज आपका क्या कसम है, क्या अहद है सलीब के सामने? ये सुनू मारिया किने है? रोमिया के यूदिया ने भारी तुम मारिया गए, तुम्हारे गुनाहों के सबब से वो मसलूब हुआ, तुम्हारी खताओं के सबब से उस पर से। रोमिया ने भी कसूर है, वो तो अपना कानून पूरा कर रहे हैं। अरे रोमियों की वजह से नहीं, यहूदियों की वजह से नहीं, मेरे और आपके गुनाहों की वजह से हमने उसको मसलूब किया है। पतरस आवाज बोल गए हैं और कितने भी क्या रोमिया फट के टांग छड़े मेरे यीशु नहीं, वो कहता तुमने, यू आर द वन, यू आर गिल्टी। और अगर मैं और आप इन बातों को सुन के आज भी रद्द करें और दुनिया की रविशों पे चले, तो यकीन जानिए हम हर रोज उससे मसलूब करते हैं। हम हर रोज अपने कामों से, अपनी बातों से, अपनी रविशों से, अपनी सोचों से, अपनी आदत से हर रोज अपने मसीहा को मसलूब करते हैं। दुनिया में तारीख के एतबार से वो 2025 साल पहले सलीब पर चढ़ा, मगर आज भी हर वो ईमानदार जो गुमराह है, हर वो मसीही जरा मसीही का सिर्फ पैदा ही हो गया है, अरे वो ऐसा शख्स हर रोज मसीह को कुर्बान करता है। ये लम्हा फुकरिया है जिसो हर एक जान, हर एक बेटे, हर एक बेटी के लिए अपनी अपनी नशिस्त में बैठे हुए और इस बात पर गौर कीजिए, अपनी जान को परखिए, जानिए, समझिए। व्हाट आई एम डूइंग टुडे? क्या मैं अपने कामों से, अपनी बातों से, अपनी रविशों से, अपनी सोचों, अपनी आदतों, अपने ख्यालों से हर रोज अपने मसीहा को मसलूब करता हूँ? और उसने तो पुकार के कह दिया, बाप इनको माफ कर। उसने तो दाऊदनामा भी दे दिया, फिरदौस खुला है, आ मेरे साथ फिरदौस में। वो पुकार के कहता है, मैं तेरा प्यासा हूं। उसने तो ऐलान कर दिया, मैंने तेरी खातिर सब कुछ तमाम कर दिया। मैंने उसको तो नमूना दे दिया कि जैसे मैंने अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सौंपी, आप भी अपना आप सौंप के देख। What is your decision today? आज आप क्या फैसला लेते हो? आइए हम सब अपने कदमों में खड़े हों। अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें।